straight across to Dushyant Sridhar, a spiritual guide for the Hindu faith and tradition, a man who has distinguished himself with his devotion to Sanatan. What a day today, Dushyant ji, what a day today. It comes together in a massive celebration of the renaissance of Sanatan culture in this country, a culture that perhaps some of us, more deracinated amongst us, were willing to overlook in the name of progressivism and other ideologies. To all the viewers world over of CNN News 18 who have been on such a momentous occasion. In 2024 January, we had the opportunity, the saubhagya, the fortune to see the Honorable Prime Minister lead the Prana Pratishtha at the very Rama Janmabhoomi temple. And today, towards the end of 2025, we are seeing the Dhwajarohan. I'm sure your viewers will know that in Sanatana Dharma, in Hinduism, the flag holds a very significant position. When we speak of Vishnu, Narayana, we say Garuda Dhvajatoshaya Gito Garuda Dandakaha, Garuda Dhvajatoshaya. There is a motive of Garuda on the flag that flutters high above the chariot of Vishnu. In the commencement of the Bhagavad Gita, Vyasacharya says that it was Kapidhvajaha. The flag that was fluttering high on the chariot of Arjuna was carrying the symbol of Hanuman. And today in Rama Janmabhoomi temple, we have the flag that carries, of course, the Pranava mantra, and it has the Kovidara Vriksha. What is Kovidara tree? See, in the Ramayana, we have a mention of Kovidara Vriksham in one place. It says, Yatha tu khalu durbuddhir bharataha swayamagataha sa yeshahi mahakayaha Kovidara dhvajorate. So when Bharata wanted to bring Rama back to Ayodhya, so he takes an entire retinue. He comes with his younger brother Shatrughna, with his mothers Kaushalya, Kaikeyi and Sumitra. They all come as a huge retinue from Ayodhya to Chitrakuta. So at that point in time, seeing such an Andhi coming, Rama asks his younger brother Lakshmana to go atop a tree and check who is coming. That is when Lakshmana doubts the intent of Bharata and says, here comes our brother Bharata to attack you, Rama. I see the symbol of Kovidara Vriksham in it. So this Kovidara tree, Rahul, is very native to India, especially the northern part of India and some parts of Myanmar. It also finds a huge medical use in Ayurveda. So this Kovidara Vriksham is found there. And Rahul, you will appreciate for sure, because our lives are just not products of our own hard work. There are so many people who contribute to our life's journey, our life's success. Yes. Similarly, in Rama's journey, which is referred to as the Ramayana, we find a squirrel that assisted him in the construction of a setu. It was a Shabari, a Bhilla Kumari, a Bhilli who lived in the forest who offered fruits to him. It was the Vanara Sainya of Sugriva, Angada, Hanuman who assisted him throughout the journey when he wanted solace due to the separation of Sita. It was a hunterman, a boatsman called Nishadaraja Guha who assisted Rama in ferrying him from one bank of Ganga to the other. Today, Rahul, we should all be so proud of a civilization because the temple just doesn't celebrate Rama. There is a place for the squirrel. There is a place for Shabari. There is a place for Guha. So it is a very all-inclusive temple, like how the religion is. So that is one point. And you made another interesting point, Rahul. See, till about 10 years back, we were made to feel that only if you shed your Indian ethos and your civilizational past, you will look sophisticated. I just can't imagine a day 10 years back when a person sporting a pundra like me would be taken into a TV channel for a panel. They will just cough, they will just frown at me and they'll just say that this person is less educated, less cultured. Because the belief that only when we anglicize ourselves, when we look English, we don't have to speak English, we have to look English. That is when you are to be treated in the media world or any world. But gone are those days because the Honorable Prime Minister is leading in the front and he's saying that I respect all religions. That is why all the government schemes go to all communities and religion. Just hold your thoughts for
10 seconds, I want to play out a ground report which gives us a bird's eye view as well as a worm's view of what we are likely to experience and encounter if we were to go right now and we were transported to the mandir. नमस्ते। देखिए, मैं अभी इस पर मंदिर के परिसर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। छोटा सा वीडियो जल्दी से बना देता हूँ। फोन अधिकांश लोगों को अलाउड नहीं है, पर कोई एक सज्जन है जिनको ये परमिशन मिल गया, जिनकी वजह से मैं ये आपको दिखा पा रहा हूँ। ये पीछे देखिए, यहाँ गीत और भजन गाए जा रहे हैं और मेरे पीछे ही मंच है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब थोड़ी देर बाद यहाँ उपस्थित गणमान्य को संबोधित करेंगे। अब थोड़ी देर बाद ये ऊपर देखिए जहाँ पर ध्वजारोहण होगा, ये मंदिर का वो शिखर है जिसके ऊपर अब वो 20 फुट चौड़ी ध्वजा चढ़ेगी। बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा है। एक बात मैं आपको बता दूं तो इस बार जो लोग यहाँ इस वक्त उपस्थित हुए हैं वो सब कर सेवक हैं, जिन्होंने कर सेवा की राम जन्मभूमि के परिसर और जिन्होंने मेहनत की, उन सबको इस बार यहाँ पर निमंत्रण दिया गया। तो वीवीआईपी जिस तरह से सेलिब्रिटी इन लोगों को कहा जा रहा है, वैसे कोई नहीं है, पर जिन लोगों ने अपने हाथ पैर धुलवाए, जिन्होंने गालियां खाई, जिन्होंने श्रम किया, जिन्होंने परिश्रम किया इस मंदिर के निर्माण में और रामलला विराजमान में, वो लोग इस वक्त इस बार उपस्थित है। तो शायद कहीं ना कहीं सौभाग्य है कि मुझे भी अवसर मिल गया उनके साथ जुड़ने का, उनसे बात करने का। कुछ लोग हैं यहाँ पर, ये जो जिस एनक्लेव में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कई गणमान्य हैं। मेरे बगल में देखिए अशोक चौगले जी हैं। अशोक जी नमस्ते, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, आने में मैं बहुत खुश हूँ। आपको कभी लगा कि आपके जीवन काल में आप ये देख पाएंगे? लगा था। वाह, अशोक जी सिंगल पर भरोसा था। तो अशोक चौगले जी महाराष्ट्र से हैं, विश्व हिंदू परिषद के पहले ऑफिस बेरर भी रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसा सोचा नहीं था, मैंने तो नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। ये शायद हमारे पूर्वजों का और हमारे बड़ों का श्रम था कि हम लोगों को इसका आनंद लेने का मौका मिला। दो सज्जन हैं जो काफी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं इनसे काफी बार संवाद करता हूँ, नचिकेता तिवारी जी और उनके बगल में इन्हें कौन नहीं जानता, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के फाउंडर हैं, हिंदू मैनिफेस्टो के लेखक हैं स्वामी विज्ञानानंद जी। स्वामी जी, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ताकि अगेंस्ट लाइट हो जाए हम, ताकि आपका चेहरा दिखे। अब आप मुझे बताइए कि ये आज का दिन जो है इतना विशेष क्यों है? आज 25 नवंबर इसलिए है कि दो चीज के कारण से। देखो, अयोध्या में जब 500 साल पहले मंदिर टूटा था जी, टूटने के बाद तो फिर जैसे दिवाली या जो आज का है राम विवाह, सब तो ग्रैंड से कभी मनाया नहीं गया। तो आज जैसे 2000 पिछले 2 साल पहले 2024 में अभी मंदिर कंप्लीट हो गया। अयोध्या लाइव हो गया। भगवान का जो अपना जिसके कारण से अयोध्या का उनका घर, उनका मंदिर पूरा हो गया। और आज का दिन तो उनका विवाह पंचमी है। तो ऐसे भी आप समाज में विवाह पंचमी का बड़ा महत्व है। तो ये बहुत हिस्टोरिकल है, तो और ये बहुत इंस्पिरेशनल है और ये बहुत बड़े सैक्रिफाइस के बाद आया है जी। 78 लड़ाइयाँ लड़ी हमारे पूर्वज ने, 500 वर्षों का सैक्रिफाइस है जी। और एक तो यहाँ नीचे रामलला है, ऊपर एक पहले वाले पर राम सिया है। हाँ, नहीं ऐसा नीचे क्या है, रामलला है ना, जहाँ जन्म हुआ था भगवान राम। तो जन्म तो छोटे ग्रुप में हुआ, उन्हीं की प्रति रामलला में चाइल्ड था, उनका जन्म स्थान का मंदिर है। अब उसके ऊपर तो क्या है, पूरा राम दरबार है, इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान है और बाकी सभी लोगों का है। तो ऊपर उनका पूरा राम दरबार है जी। आज प्रधानमंत्री जी से और संसद चालक जी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नचिकेता जी इज ऑल्सो इन्वॉल्व, वो विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ IIT कानपुर में प्रोफेसर भी है। तो साइंस और स्पिरिचुअल और सनातन सबका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है आपका। पर बताइए प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षा है? इसी मंच पर आप हमें सुनेंगे थोड़ी देर। प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि पर धर्म की ध्वजा स्वच्छंद होकर करके लहराएगी। बहुत बड़ा हिंदू ये जो
बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन उस समय मंदिर अपने पूर्ण रूप में स्थापित नहीं था। शिखर औपचारिक पूरा मंदिर निर्मित हो गया है। अपने ऐश्वर्य भगवान अपने राजमान में सारी प्रक्रियाएं अब धर्म की प्रजा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रह रहे हैं। ये आज के दिन का बहुत बड़ा बात है। और सज्जन हमारे साथ हैं, ये फ्रांस से आए हैं, विश्व हिंदू परिषद फ्रांस से आए हैं। ललित शर्मा जी नमस्ते। आज आपको कैसा लग रहा है? आज आपने तो कर सेवा की है, कर सेवा दी है, आपका हाथ हमारे दर्शकों को, पर इनको भी बहुत लाठियां डंडा खाने का उस समय देखिए आनंद जी, आज का दिन इतना शुभ है कि उस अशुभ घड़ी को हम स्मरण में नहीं रखना चाहिए। आज तो सिर्फ राम सिया राम जय। पर आपको अच्छा लग रहा है कि जिन्होंने सेवा की वो आज यहाँ बैठे हैं ध्वजारोहण के लिए? स्वर्गवासी हमारे पूजनीय सिंगल जी, जिन्होंने जीवन भर विश्व हिंदू परिषद के संगठन के लिए कार्य किया, इसको मजबूत करने के लिए और श्री राम मंदिर आंदोलन के लिए, जिसके जन्मदाता मैं कहूँगा आज के भविष्य में, आज के वर्तमान के समय में अशोक सिंघल जी ने जो प्रयास किया उसका आज साकार रूप है जी। देखिए, इस साकार रूप में एक ऐसे महत्वपूर्ण एक किरदार है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। और जो ये आज भव्य रूप आप देख रहे हैं ना, इसमें उन्होंने जो उस समय, मैं 92 का तुम्हें याद दिला रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि संतों को छोड़ के संत हमारे साथ बैठे हैं, यही उनका बड़प्पन है। नहीं, आपको वो राज मैं बता सकता हूँ जो स्वामी जी सिर्फ जानते हैं। तो उस राज का पर्दा समय आने पे बता देंगे, और हो सकता है आज शाम को बताएंगे। ये क्या राज है, ये भी तो बताइए। शाम को 7 बजे। अच्छा, ऐसा है। CNN 18 पे। अच्छा, न्यूज 18 पर हमको ही बताएंगे। देखिए, जाते जाते कुछ लोगों से आपको मैं परिचय करा दूं। देखिए, अब हमारे पीछे देखिए, ये वो शिखर है और ये वो पूरी तरह से जो मेन एंट्रेंस द्वार है वो सजा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। सामने स्क्रीन है, इसी पद से ऊपर चढ़कर, सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर वहाँ उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में अभी सबको संबोधित करेंगे। आप देखें, सारे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। काफी लंबा मैं आपको कर पाया हूं क्योंकि एक सज्जन है जिन्होंने हमारी मदद की। ये डॉक्टर टैगोर है और ये सीवी रेड्डी जी। सीवी रेड्डी जी आंध्रा से हैं। डॉक्टर टैगोर हैज कम फ्रॉम लास वेगस। कैसा लग रहा है आपको? ये हिंदी के हमारे दर्शकों को मैं भेजना चाहता हूँ, तो बताइए कैसा अच्छा लगा? feel like home, peaceful, and we want to be here forever. अच्छा, kind of वाइब्रेंट। मैं थोड़ा सा आपको, आई वांट टू पुट यू इन अ स्पॉट। बालाजी और राम जी और बहुत है ना, बहुत। हाँ, दोनों आंखें, तो एक राम जी है तो एक बालाजी, एक कृष्ण जी है। देखिए, तो राम जी यहाँ कृष्ण जी भी आ गए। कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत बढ़िया सर। अभी बोला ना मैंने, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू बी हियर at the program of ध्वजारोहण जी। ये हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए, तो यार दक्षिण भारत, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से लोग आए हैं और चारों तरफ मंदिर का परिसर इतना सुंदर बनाया है कि भव्य बनाया है। 6 अलग अलग मंदिर है। सप्तऋषि का मंदिर है, फिर शिव गणेश का मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा और भगवती का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सूर्यदेव का मंदिर है और श्वेतावतार जिसे कहा जाता है शेषावतार, तो शेषावतार का भी मंदिर है। सब इस परिसर के अंदर, इसको अब संपूर्ण कर लिया गया है। जल्दी से आपको एक 360 दिखा देता हूँ। देखिए, पूरा परिसर कितना भव्य, सुंदर, आलौकिक लग रहा है। और पीछे देखिए भजन शुरू है, बहुत बढ़िया भजन गाए जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जी यहाँ आ जाएंगे। अब मुझे आपसे आज्ञा लेनी होगी क्योंकि मेरे पास संकेत आ गए कि मैं इस वीडियो को अब बंद कर दूं।